हाथ छोड़ दे कटा प्लेट से कपड़ा कपड़ा माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष, Today, 16 September 2019, I welcome to the all members to this 14th monsoon session. I hope the session will be faithful. Newly elected member to take the oath of affirmation, Secretary General, please. Mrs. Karavati Gupta, who stands elected from the Darjeeling constituency of West Bengal Youth Legislative Assembly, will now take the oath of affirmation, please. Mrs. Karavati Gupta, please. Do you want to oath or affirmation, please? In oath, please. In which language would you like to take oath? In Bangla, please. আমি কলাবতী গুপ্তা বিধানসভার নবম সদস্য ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করছি কিংবা সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করছি যে আইনের উপর স্থাপিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আমি চিরবিশ্বস্ত ও চির অনুগত থাকব এবং দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করব এবং যে পদ আমি গ্রহণ করতে চলতেছি তার কর্তব্যনিষ্ঠা ও বিশ্বস্তার সঙ্গে পালন করব। ধন্যবাদ। Next program, condolence. Honorable members, as we meet today, it is my bond duty to inform the House on a simple note of our demise family. The House on a simple note of a sudden demise of the legendary filmmaker Mrinal Seth. He was the amazing contribution in the film industry. Mrinal Seth was passed 13 December 2018 in Kolkata. He was 95. He was awarded a Padma Bhushan and a Dada Saheb Phalke Award. His sudden demise has put the nation into glow. He was idol person of filmmakers. Honorable Chief Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पार्टी के सभी सदस्यों की ओर से महान मृणाल सेन के दुख निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने अपना जीवन बांग्ला फिल्म जगत के लिए समर्पित कर दिया। मृणाल सेन कोलकाता शहर पर आधारित फिल्म निर्माता के रूप में जाने जाते थे। अपने जीवन के 60वें दशक से भी ज्यादा वे अपने समकालीन सत्यजीत रॉय और ऋति घटक के साथ भारतीय सिनेमा के लिए एक नया अध्याय लिखे। उनकी जीवन की शुरुआत 1955 ईस्वी के राते भोरे फिल्म से हुई, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि 2 फिल्मों के जरिए प्राप्त हुई, नीले आकाशेर और बाईसे सावन के जरिए। आज भले ही मृणाल सेन हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके फिल्मों के जरिए पूरा भारतवर्ष उन्हें याद रखेगा। वे कहते थे, कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ,
समुद्र में भी उतर जाऊंगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पोजीशन लीडर प्लीज। बिछड़ा कुछ इस अदा से की रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे देश को विराम कर गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता विपक्ष के रूप में श्री मृणाल सेन का निधन पर स्वयं तथा अपने दल के सभी सदस्यों को शामिल करते हुए गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। श्री मृणाल सेन 1998 से 2003 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। यद्यपि वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं बने। उन्हें न केवल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, बल्कि 12 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी नवाजा गया। 2017 में वे ऑस्कर अकेडमी के आजीवन सदस्य भी रहे। भारतीय फिल्म उद्योग में और इस देश में वे अपने अविस्मरणीय योगदान के लिए सदा स्मरणीय रहेंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। थैंक यू। The House will stand in silence for a while to express your deep sorrow. Secretary General may convey the message of condolence to Demise family. I will convey the message of condolence to Demise family. Thank you, Adhyaksh Mahoday. Honorable Chief Minister, introduce the new minister. Honorable Speaker sir, I have pleasure of introducing to you and now you to the House my calling the new minister, Mrs. Manisha Tiwari, Transport Minister. Thank you. आज की सभा की शुरुआत नॉन गवर्नमेंट बिजनेस के साथ की जाती है। Now the time is start for question hour. I have received 6 questions in question hour. Now the question number 101, subject pay commission. Mrs. Pushpa Kumari Rai, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि 6 पे कमीशन की माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि राज्य के कर्मचारियों का वेतन पिछले 15 वर्षों से अपडेट नहीं हुआ है। इस बढ़ती महंगाई के युग में अपने इस छोटे से वेतन से अपने परिवार का पालन पोषण करना असंभव हो गया है। भारत के अधिकतर राज्यों में 7वां पे कमीशन चल रहा है, लेकिन हमारे राज्य को अभी तक 6ठा पे कमीशन भी नहीं मिला है। क्या वित्त मंत्री हमें यहाँ बताएंगे कि 6 पे कमीशन की सिफारिश को कब लागू किया जा रहा है? 6 पे कमीशन के बेसिक में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है? 6 पे कमीशन के एरियर को कितने इंस्टॉलमेंट में बांटा जाएगा? 6 पे कमीशन के कारण जो सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेंगे, उस पैसे का इंतजाम सरकार कहां से करेगी? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ 6 पे कमीशन को लागू करने में काफी समय लगा, जिसके कारण हमारे राज्य के कर्मचारियों का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। 6 पे कमीशन की रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। मैं सिलसिलेवार तरीके से पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब देता हूँ। 1 नंबर, 6 पे कमीशन 1 जनवरी 2019 से लागू कर दिया गया है। 2 नंबर, 6 पे कमीशन में सैलरी के बेसिस को 2 गुना बढ़ा दिया गया है। 3 नंबर, 1 जनवरी 2019 से 30 सितंबर 2019 तक का एरियर 2020 में 1 जनवरी 2020 में जनवरी, फरवरी और मार्च यह 3 महीने का इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। 4 नंबर, 6 पे कमीशन के कारण जो सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा, उस बोझ को सरकार पूरा करने के लिए करों में विनती करेगी। धन्यवाद अध्यक्ष। मिस्टर रोहित शर्मा को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 1 के लिए अनुमति दी जाती है। ऑनरेबल स्पीकर, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अभी भी कहा कि 6 पे कमीशन को 1 जनवरी 2019 से लागू किया जाएगा। यह बिल्कुल गलत है। राज्य सरकार कर्मचारी से धोखा है। सरकार राज्य सरकार कर्मचारी को अपने जेब में रख रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फाइनेंस मिनिस्टर से जानना चाहता हूँ कि 6 पे कमीशन को 1 जनवरी 2016 से क्यों लागू किया जाए? धन्यवाद। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, 6 पे कमीशन को सरकार सही समय से लागू कर रही है। पिछले सरकार ने जो 4 साल देर से पे कमीशन की सिफारिश को लागू किया, सामने जो विपक्ष बैठा हुआ है ना, उन्हीं की सरकार और वे खूब जानबूझकर 4 साल देर से 5वां पे कमीशन को लागू किया था। मेरा फैसला 6 पे कमीशन लागू करना 1 जनवरी 2019 से बिल्कुल सही था। धन्यवाद अध्यक्ष। कुमारी राम को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 2 के लिए अनुमति दी जाती है।
ऑनरेबल स्पीकर, 6 पे कमीशन को लाने में सरकार जानबूझकर लेट कर रही थी और सरकार की तरफ से पे कमीशन की रिपोर्ट डेट से पेश करने का आदेश दिया जा रहा था। क्या यह सच नहीं कि 6 पे कमीशन को सदस्य के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था? धन्यवाद। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का यह आरोप बिल्कुल गलत है। पे कमीशन के सदस्यों के ऊपर कोई दबाव नहीं था सर। पे कमीशन के सदस्यों पे कमीशन एक स्वतंत्र संस्था था और रहेगा। सच बात तो ये है, पे कमीशन ने राज्य के कर्मचारियों का पे स्केल की पूरी रिवाइज की है। धन्यवाद अध्यक्ष। नाउ द क्वेश्चन नंबर 102 सब्जेक्ट मिड डे मील। अपोजिशन लीडर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को ये बताना चाहती हूँ कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना चल तो रही है, पर जिस उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था वो कदापि पूरा नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत बच्चे जो खाना खाते हैं वो खाना ना ही स्वाद में अच्छा होता है और ना ही सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि खाने के सामान की क्वालिटी बिल्कुल सही नहीं होती और खाने में शुद्धता की जगह सिर्फ और सिर्फ गंदगी रहती है। तो क्या सरकार हमें बताएगी कि इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकारी स्कूल से लेकर म्युनिसिपैलिटी और खाद्य विभाग के जो भी कर्मचारी इस भ्रष्टाचार में शामिल है उसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार इस भ्रष्टाचार को रोक रही है या खुद भी इसमें शामिल है? थैंक यू। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर प्लीज। प्रारंभ में एक दो बार चूहा छिपकली निकला था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता क्योंकि सरकार ने मिड डे मील का संचालन एक रिस्पॉन्सिबल एनजीओ को दे दिया है। जहाँ तक कि भ्रष्टाचार का सवाल है तो सरकार प्रत्येक विद्यालय में गार्डियंस की कमेटी बना दी है। मैं आप सबको आश्वासन दिलाती हूँ कि अब ऐसी गड़बड़ी नहीं होगी। धन्यवाद। क्वेश्चन प्लीज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 103 सब्जेक्ट ईस्ट वेस्ट मेट्रो प्रोजेक्ट। मिसेस रोहित साहब प्लीज। ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल प्रोजेक्ट, जिसे हुगली रिवर टनल मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, निसंदेह ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है। लेकिन नागरिक को सुविधा के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस योजना का प्रारंभ नहीं हो पाया। लेकिन इस योजना का प्रारंभ 2016 से बन रही है। मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं होम शिक्षा मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि यही योजना का प्रारंभ कब तक चलता रहेगा? अभी तक नहीं हो पाई। नंबर 1, ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल प्रोजेक्ट का आरंभ 2000 कब होगा? नंबर 2, ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल प्रोजेक्ट में कितने रुपए खर्च होंगे? नंबर 3, इसको बनाने में इतनी मिलावट क्यों हो रही है? ऑनरेबल होम मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के प्रश्न उत्तर देने से पहले इस परियोजना के बारे में डिटेल से बताना चाहता हूँ। यह परियोजना ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल प्रोजेक्ट भारत का सबसे पहला अंडर वाटर रिवर टनल होगा। इसकी लंबाई 10.8 किलोमीटर तथा चौड़ाई 5.5 मीटर होगी। यह हुगली नदी के तल से 30 मीटर नीचे होगा। यह शहर के सबसे व्यस्त यात्रियों को फूल बागान मेट्रो स्टेशन से लेकर हावड़ा मैदान तक लोगों को भीड़ भाड़ से बचाएगा तथा उन्हें उनकी मंजिल तक कम समय में पहुंचाएगा। अब मैं मेरे काबिल दोस्त द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सिलसिलेवार तरीके से देता हूं। पहला प्रश्न, यह परियोजना अपने निर्धारित समय से कुछ समय बाद 2021 में चालू होगी। दूसरा, यह परियोजना 3,951 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 3,900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न, परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अच्छे वातावरण की आवश्यकता होती है, जो कि नहीं है। परियोजना से संबंधित संस्थाओं का सहयोग हमें सही से नहीं मिल रहा है। परियोजना के रास्ते में कई हेरिटेज तथा बिल्डिंग्स हैं। सरकार को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से इसके प्रबंध का परमिशन मिल गया है। हमने ओल्ड बिल्डिंग्स को टेम्पोररली शिफ्ट कर दिया है तथा लेकिन चिंता की बात नहीं है, परियोजना का 90% भाग कंप्लीट हो चुका है। 5,490 मीटर टनल का निर्माण हो चुका है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि अवश्य 2021 तक चालू हो जाएगा। धन्यवाद। इसे पुष्पा कुमारी राय को सप्लीमेंट्री 1 के लिए अनुमति दी जाती है। मंत्री जी, आपने कहा परियोजना वर्ष 2021 में पूरी तरह तैयार हो जाएगी, लेकिन इस बात की जानकारी तो आपको भी होगी कि इसी महीने के 3 तारीख को गो बाजार में इसके निर्माण के कारण कई इमारतें ध्वस्त हो गई, जिसके कारण परियोजना का काम पूरी तरह बंद पड़ा है।
मंत्री जी, मेरा यह प्रश्न है कि परियोजना का कार्य बंद होने के बाद यह समय पर कैसे पूरा हुआ? धन्यवाद। ऑनरेबल होम मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद विपक्ष को मालूम नहीं कि इस परियोजना का उत्तरदायित्व किस कंपनी को दिया गया है। इस परियोजना का उत्तरदायित्व महाराष्ट्र बेस्ड एफकॉन कंपनी को दिया गया है। यह इतनी बड़ी कंपनी है कि इसने दुबई के सुल्तान का महल तैयार किया था तथा इसने इंटरनेशनल लेवल पर भी कई कार्य किए हैं। इसलिए मैं आशा करता हूं कि यह अवश्य 2021 तक चालू हो जाएगा तथा हमने पानी के लीकेज की समस्या को ठीक करने के लिए साउथ अफ्रीका से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बुलाए हैं। धन्यवाद। सप्लीमेंट्री 2 के लिए अपोजिशन का लीडर को अनुमति दी जाती है। ऑनरेबल स्पीकर सर, भाव बाजार में बिल्डिंग कोलैप्स होने के कारण सोने चांदी के व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। इधर पूजा और उसके बाद शादी ब्याह का लग्न आने वाला है, तो क्या सरकार हमें बताएगी कि सरकार इन सब की भरपाई कैसे करने वाली है? थैंक यू। ऑनरेबल होम मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विपक्ष के प्रश्न को सुना। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कई इंफॉर्मेशन की जरूरत है, इसलिए मैं उसका उत्तर लिखित रूप से दे रहा हूँ। Now the question number 104, subject शिक्षा में विकास। अपोजिशन लीडर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे शिक्षा मंत्री से ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकारी स्कूलों में क्लास 8 तक पास या फेल होने के नियम को हटा दिया गया है और बच्चा चाहे पढ़ने में अच्छा हो या कमजोर, उसे क्लास 8 तक लगातार पास कर दिया जाता है, जिससे कि परिश्रमी विद्यार्थी भी आलसी होते जा रहे हैं और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में लापरवाही हो रही है। क्लास 8 के कुछ बच्चों को तो क्लास 5 की भी नॉलेज नहीं होती, लेकिन वे कहलाते हैं क्लास 8 के स्टूडेंट। तो क्या हमारे शिक्षा मंत्री हमें ये बताएंगे कि क्या सोचकर इस नियम को लाया गया? क्योंकि हमें लगता है कि इससे देश का भविष्य, शिक्षा का भविष्य और विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। तो अब हमारे शिक्षा मंत्री हमें ये बताए कि क्या और कैसा नियम है ये। थैंक यू। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला, शिक्षा क्षेत्र में अष्टम श्रेणी तक के पास फेल को हटाना नो डिटेंशन पॉलिसी एक प्रयोग था, जो कि कुछ हद तक सफल भी रहा। ये अशिक्षा अब तक एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या बन चुकी है। दूसरा, परंतु इस प्रयोग को हम पूरी तरह से सफल भी नहीं मान सकते हैं। तीसरा, इससे लोग साक्षर तो हो रहे हैं किंतु शिक्षित नहीं। चौथा, सरकार इस विषय पर गंभीर सोच विचार कर रही है और पास फेल प्रथा को लौटाने का विचार कर रही है। पांचवा, अधिक से अधिक तकनीकी कॉलेज खोलने का विचार हो रहा है। छठवां, सरकार की नो डिटेंशन पॉलिसी की काफी आलोचना की गई है। सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। धन्यवाद। Now the question number 105, safe drive. Mr. रोहित शर्मा प्लीज। माननीय स्पीकर महोदय, आपके माध्यम से मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ का सेफ ड्राइव सर्वे अभियान तक सरकार ने कितने रुपए खर्च किए? का इस अभियान से क्या क्या फायदे हुए? धन्यवाद। ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता की तरफ पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। तो सेफ ड्राइव और सेफ लाइन में सरकार ने अब तक 500 करोड़ रुपए का खर्च किया है, जिसका इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग जनता को जागरूक करने और सिविल पुलिस और ग्रीन पुलिस को देने में हुआ है। नंबर 4, सेफ ड्राइव और सेफ लाइफ एक सफल अभियान रहा है। इसके अनेक फायदे। नंबर 1, सेफ ड्राइव और सेफ लाइफ अभियान के द्वारा सड़क दुर्घटना में काफी कमी हुई है। जहां वर्ष 2015 और 16 में 185 रोड एक्सीडेंट हुए, वहीं वर्ष 2016 और 17 में 55 रोड एक्सीडेंट हुए। मृत्यु दर में काफी कमी हुई है। जहां पहले वर्ष रोड एक्सीडेंट में 350 लोग मारे गए, वहीं इस वर्ष रोड एक्सीडेंट में 75 लोग मारे गए। नंबर 2, बेरोजगार लड़की लड़कों को रोजगार मिला है। सेफ ड्राइव और सेफ लाइफ अभियान के द्वारा 1.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिला है। नंबर 3, सेफ ड्राइव और सेफ लाइफ अभियान के द्वारा इलीगल लाइसेंसियल पर लगाम कसा गया है। अब एक कड़ी परीक्षा देने और ट्रेनिंग के बाद ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है, लेकिन पहले बिना ट्रेनिंग के ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता था। धन्यवाद। Now the question number 106,
शिक्षा का विकास मिसेस तनु कुमारी राम प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहती हूँ कि हमारे राज्य में शिक्षा का विकास अब तक कहाँ तक हो पाया है। धन्यवाद। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्षी सहयोगी ने बहुत सुंदर सवाल किया है। आज मैं पूरे सभा को सरकार द्वारा अब तक के उठाए गए कदम को एक एक करके बताती हूँ। पहला, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने प्रदेश में RTE को लागू कर प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पुस्तकें मुफ्त में दी जाती है, ड्रेस और जूते भी दिए जाते हैं। पास फेल हटा दिया गया है क्योंकि फेल होने के कारण बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं। अब कोई नहीं भागता। एक बार जो स्कूल में भर्ती हो गया वह कम से कम 10 पास करके ही निकलता है। दूसरा, सरकार कन्याश्री और शिक्षाश्री योजना चला रही है। प्रत्येक लड़की को प्रत्येक वर्ष 500 रुपए दिए जाते हैं। शिक्षाश्री के तहत सरकार पिछड़े वर्ग की लड़कियों की काफी सहायता कर रही है और बच्चों को साइकिल भी दिया जा रहा है। मिड डे मील, हमने विद्यालय में मिड डे मील शुरू किया है। खाना का नाम सुनकर बच्चे रोज दौड़े स्कूल आते हैं। मिड डे मील के कारण गरीब बच्चों को एक वक्त का भरपेट खाना मिल जाता है। मिड डे मील के कारण विद्यालय में आने वाले बच्चों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। धन्यवाद। Now the question hour is over. मुलतवी प्रस्ताव। अब मुलतवी प्रस्ताव का समय आरंभ होता है। मुलतवी प्रस्ताव को पेश करेंगे मिसेस तन्नू राम। मेरा नाम तन्नू राम है। मैं विपक्ष की सदस्य हूँ। मैं सदन में मुलतवी प्रस्ताव लाने की अनुमति चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री के उस आदेश के संदर्भ में चर्चा करना चाहती हूँ जिसके द्वारा जय श्री राम बोलने वालों को अरेस्ट किया जाता है। मुझे मुलतवी प्रस्ताव लाने की अनुमति दी जाए। अब यह प्रश्न है कि माननीय सदस्य श्रीमती तन्नू राम को मुलतवी प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जाए। जो लोग इसके पक्ष में है वे खड़े हो जाए। इस प्रकार देखा जाता है कि मुलतवी प्रस्ताव को पास करने के 1/8 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, जो कि नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए यह प्रस्ताव बातिल किया जाता है और बातिल किया जाता है। दृष्टि आकर्षणीय प्रस्ताव। अब दृष्टि आकर्षणीय प्रस्ताव का समय आरंभ होता है। मिस्टर रोहित शर्मा प्लीज। आदरणीय सभापति महोदय, आप सभी के माध्यम से मैं यूथ लेजिस्लेटिव असेंबली का ध्यान चबदानी मुंसिपलिटी के अंतर्गत आने वाले उस हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ लेके जाना चाहता हूं जिसके बिल्डिंग की हालत अत्यंत जर्जर है। वह स्कूल है चबदानी आर्य विद्यापीठ, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। यह बिल्डिंग 65 साल पुरानी है। जगह जगह पर बिल्डिंग में दरार पड़ गई है। इसके साथ कमरे का प्लास्टर भी छोटा था। मैंने तो कई बार देखा है कि शिक्षक पढ़ा रहे, बच्चे पढ़ रहे, उसमें प्लास्टर बच्चे पर गिरता है। एक बार तो 9वीं कक्षा के विद्यार्थी का सिर फूट गया। इसके साथ बिल का हिस्सा भी गिरता था। मैं सदन में ध्यान इस सब करते हुए सरकार से गुजारिश करता हूँ कि वे राज्य भर में फैले 50 साल से अधिक स्कूलों को तुरंत तोड़ने का आदेश जारी करे ताकि बच्चों के ऊपर मोट की तलवार को समाप्त किया जाए। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 50 साल से अधिक पुराने बिल्डिंग्स को तोड़ने का आदेश सरकार पहले ही दे चुकी है। चबदानी आर्य विद्यापीठ का इंस्पेक्शन किया जाएगा। धन्यवाद। Now the time is start for 0 hour. I have received 6 questions in 0 hour. So the first question 356, subject communal violence. Opposition leader please. हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता। भारत की मस्जिदें तोड़ो ये राम नहीं कहता। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। कोई कहता है हिंदू खतरे में है तो कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। अरे धर्म और जाति का चश्मा उतार कर देखो मेरे यारो, हमारा पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। न गीता बुरी न कुरान बुरा, न हिंदू बुरी न मुसलमान बुरा। जो इन दोनों को उलझाए सबसे ज्यादा वो इंसान बुरा। तो देश के वैसे इंसानों के लिए क्या किया जा रहा है जो धार्मिक और सांप्रदायिक दंगों की जड़ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से
मारे गए। 24 परगना में दंगा हुआ और घर के बाजार नष्ट कर दिए गए। वीरभूमि में दंगाइयों ने पुलिस सहित कई गाड़ियों को आग के हवाले कर राख कर दिया। आए दिन ऐसे हिंसा होते रहते हैं और समाज में असुरक्षित माहौल बन जाता है। तो क्या ऐसे ही दंगे रोज होते रहेंगे या सरकार इसे रोकने की कोई व्यवस्था करेगी? सरकार हमें जवाब दे कि समाज में फैली अशांति को, हिंसा को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। थैंक यू। ऑनरेबल होम मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष बिना मतलब के बवाल खड़ा कर रहा है। अरे छोटे मोटे दंगे फसाद किस राज्य में नहीं होते? महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश में तो दंगे फसाद होते ही रहते हैं। अपने पड़ोसी राज्य बिहार तथा झारखंड को ही देख लीजिए, यहाँ तो आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं, जिसके कारण कई लोगों को घायल तथा हिंसा का शिकार होना पड़ता है। तो क्या यहाँ की सरकारों ने इस्तीफा दे दिया है? नहीं दिया ना, तो फिर हमसे क्यों इस्तीफा मांगा जा रहा है? जहाँ तक हिंसा की बात हुई तो सरकार की इस पर कड़ी निगरानी है। अगर कहीं भी हिंसा दंगे फसाद हुई तो सरकार दोषियों को सजा देगी तथा सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है और कानून व्यवस्था को कड़ी कर दी गई है। मालदा, बीरभूम, नॉर्थ 24 परगना जैसे हिंसाशील क्षेत्रों में सरकार ने पुलिस फोर्स को तैनात करके कानून व्यवस्था को कड़ा कर दिया है और पुलिस को कड़े आश्वासन दिए हैं। अब किसी के मजाल नहीं कि वहाँ पर दंगे फसाद को बढ़ावा दे। इसके अलावा सरकार वहाँ पकड़ी गई दोषियों को सजा दे रही है। सरकार इसके अलावा पार्टी लेवल पर भी कार्य कर रही है। सरकार बूथ लेवल पर पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर एक शांति सेना बनाई है, जिसका कार्य लोगों को समझा बुझाकर हिंसा से दूर रहने का सलाह देना है। धन्यवाद। So the question number 357, health condition, Mrs. तनु कुमारी राम प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से यह जानना चाहती हूँ कि उत्तर 24 परगना में 200 एवं दक्षिणी दिनाजपुर में 150 लोग डेंगू के दुष्प्रभाव से मारे जा रहे हैं, जिसके लिए आपने स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या सुधार किया, कृपया से करके बताएं। धन्यवाद। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष पार्टी के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूँ कि हमने बीमारियों को कम करने के लिए सरकारी मुफ्त चिकित्सा केंद्र करीब 200 खुलवाए हैं और सभी सरकारी अस्पतालों में वो विशेष सुविधा दी जा रही है जिससे जनता को सहायता मिल सके और गरीब जनता को मुफ्त इलाज व मुफ्त दवाइयाँ भी दी जा रही है। और हमारा विशेष कदम पश्चिम बंगाल के जनता को साफ सफाई के लिए जागरूक करना है ताकि पश्चिम बंगाल एक स्वच्छ राज्य बन सके। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। So the question number 358, कटमनी, Mrs. पुष्पा कुमारी राय प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से यह जानना चाहती हूँ कि कटमनी का घोटाला कब तक चलता रहेगा? कटमनी की समस्या हमारे पूरे राज्य भर में फैली हुई है। सत्ता पार्टी के लोग तथा उनके कार्यकर्ता गरीबों को मिलने वाले प्रत्येक सरकारी सुविधा का 10% काट लेते हैं। सत्ता पार्टी के काउंसलर और पंचायत सदस्य तो 20 से 30% गरीबों का रुपए काट कर अपने पॉकेट में भर लेते हैं। आप ही बताइए स्पीकर महोदय, जिस गरीब को घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए अलर्ट होते हैं, उसे काट कर सिर्फ 60 या 70 हजार ही मिलते हैं। ये जो सामने सरकार का दल बैठा है, ये जो सामने सरकार का दल बैठा है, ये आज इन लोगों का बचाव करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके काउंसलर से मिनिस्टर तक एक व्यक्ति कटमनी का कमीशन खाते हैं। इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अरे आप क्या बोले जा रही है? अपना मुंह बंद करिए। जनगण की सभा है, इसकी गरिमा बना के रखे। मुख्यमंत्री जी अपना भाषण दें। अरे आप क्या बोले जा रही है? अपना मुंह बंद करिए, नहीं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। सॉरी अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अब यह बताना चाहता हूं कि विपक्ष के द्वारा लगाया गया यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। कटमनी एक अफवाह है। सरकार और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता तथा काउंसलर के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। मीडिया और अखबार वाले यह सभी के सभी झूठे हैं। यह विपक्ष के पार्टी के साथ मिले हुए हैं और सरकार के प्रतिबिंब को जनता के नजरों में खराब करने की कोशिश की जा रही है। और मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि कटमनी के ऊपर कड़ी से कड़ी जांच की जाएगी और यदि कोई कटमनी के ऊपर दोषी पाया गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। Now the question number 359, subject price rises. Mrs. रोहित शर्मा प्लीज। अध्यक्ष महोदय, गोल गोल लाल लाल नरम नरम टमाटर, गोल
टमाटर। ये टमाटर कौन गायब किया? भाई बहन जानते हैं कौन गायब किया? ये सरकार गायब की है। आज से 1 महीने पहले जो टमाटर 10 रुपए किलो मिलता था वही अभी 60 रुपए किलो भी नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सही सदन से जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी साहिब को बताए कि टमाटर थाली से गए कहाँ और कब आएंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, टमाटर के ही नहीं गए हैं, टमाटर सही सलामत बाजार में कोई भी जाकर 10 रुपए किलो टमाटर खरीद सकता है। नहीं, जादू नहीं है, सरकार का कमाल है, सरकार का। बाजार में टमाटर की सरकारी दुकान खुलवा दी गई है, जाए 10 रुपए किलो टमाटर खरीदे, खाए और खिलाए। अध्यक्ष महोदय, हुआ यह था कि कुछ बिचौलियों और कुछ मुनाफाखोरों ने अपने फायदे के लिए बाजार से टमाटरों को उठाकर गोडाउनों में भर लिए थे। सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, बिचौलियों और मुनाफाखोरों का टमाटर जल्दी आ जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष। Now the question number 360, subject water conservation. Mrs. Tandu Kumari Ram, please. जल ही जीवन है, लेकिन प्रकृति में पेय जल की मात्रा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। सुबह से लेकर शाम तक हम जल की बर्बादी करते रहते हैं। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब आदमी को पानी पीने के लिए तरसना पड़ेगा। हमारे राज्य में जल संरक्षण अधिनियम 2002 के अनुसार जल की बर्बादी करना एक संगीन अपराध है। यदि लोग जल की बर्बादी करते हैं तो इसमें 2 से 5 साल की सजा, 20,000 रुपए जुर्माना या दोनों सजा की प्रावधान है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे राज्य में इतने सारे कानून होने के बावजूद हमारे आंखों के सामने जल की बर्बादी होती रहती है। घरों पर, सड़कों में, नालियों में जल बहा दिया जाता है। म्यूनिसिपालिटी के नल का जल तो खुलेआम सड़कों पर गिरता रहता है क्योंकि उसके टैप के कवर की व्यवस्था नहीं। और यह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। म्यूनिसिपालिटी के ऊपर जल मंत्रालय का कोई कंट्रोल नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री म्यूनिसिपालिटी को कोई आवश्यक आदेश क्यों नहीं देता है? जल की बर्बादी होते हुए भी जल बर्बादी रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए कृपया कर सदन को बताएं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि वाटर कॉन्सलेशन लोग 2002 जल की बर्बादी रोकने में एक क्रांतिकारी कदम है। पेयजल की सुविधा के लिए पूरे राज्य में वाटर पाइप का कनेक्शन दिया हुआ है। प्रत्येक ग्राम और शहर में एक घर तक वाटर पाइप का कनेक्शन दिया हुआ है। यहाँ तक कि प्रत्येक सड़कों पर ड्रिंकिंग वाटर टैप लगे हुए हैं, लेकिन कुछ हमारे बच्चे टैप को तोड़ देते हैं, जिसके कारण जल की बर्बादी होती है। संपन्न परिवार के लोग गाड़ी धोने में पेयजल की बर्बादी करते हैं। कुछ लोग जानवर धोकर ड्रिंकिंग वाटर वेस्ट करते हैं। जानवर को तो दूसरे पानी से भी धोया जा सकता है, लेकिन लोग है कि पीने वाली पानी को ही बर्बाद कर रहे हैं। फिर भी हमारी सरकार ने म्युनिसिपल और ग्राम पंचायत में यह आवश्यक सूचना दे चुकी है कि जल की बर्बादी करने वाले को सरकार कड़ी से कड़ी सजा देगी। भविष्य में जल एक विकराल रूप धारण करेगा, जिसकी रोकथाम के लिए हमारी सरकार ने एक स्पेशल एक्यूट टीम का गठन किया है जो मोबाइल वैन पर काम करेगी और जल की बर्बादी करने वालों को स्पॉट पर पकड़ेगी। जो लोग सड़कों पे नल के टैप के साथ छेड़छाड़ करते नजर आएंगे, स्पॉट उन्हें अरेस्ट करेगी। धन्यवाद। Now the question number 361, education. Mr. Rohit Saab, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार बोलते हैं किताब सभी को दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं किताब की डिलीवरी कब होती है? पिछले 1 महीना पहले उसमें भी किताब सही समय पर नहीं पहुंचा। एग्जाम के 1 महीना पहले भी किताब सही समय पर नहीं आने से बच्चों का कितना प्रॉब्लम। पश्चिम बंगाल में 1500 छोटे-छोटे गाँव है, फिर भी किताब समय पर नहीं आती, जिससे बच्चों लोग आनंदपूर्वक एग्जाम सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। सरकार आज कन्या शिक्षा श्री में कितने रुपए खर्च किए? सदन में मौजूद सभी सदस्यों को बताएं। धन्यवाद। एजुकेशन मिनिस्टर, प्लीज। जवाब है भाई। प्रत्येक वर्ष बच्चों की संख्या के आधार पर पुस्तक छपती है। कम होने का तो कोई सवाल है ही नहीं। यदि किसी बच्चे को पुस्तक नहीं मिलती तो यह सरकार का नहीं बल्कि स्कूल के ऑफिस या फिर वितरण विभाग की है। स्कूली अधिकारी सही समय पर कदम नहीं उठाते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बात यह भी है कि बच्चों की संख्या भेजने के बावजूद भी एडमिशन दिया जाता है, तो बताइए यह किसकी गलती है? तो बताइए कितना घटिया? क्या यह गलती हमारी है? हम दोषी हैं?
So the 0 hour is over. So the time is governmental business bill. गवर्नमेंटल बिजनेस बिल के अंतर्गत एक बिल लाने का प्रस्ताव सरकार की तरफ से है, जिसका टाइटल है पॉपुलेशन ब्लास्ट कंट्रोल बिल 2019। ऑनरेबल होम मिनिस्टर प्लीज। ऑनरेबल स्पीकर, मैं बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक बिल लाया हूँ, जिसका टाइटल है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2019। मैं इसे सदन में पेश करने की अनुमति चाहता हूँ। Now the question is grant permission to introduce the population control bill 2019। जो बिल को इंट्रोड्यूस के पक्ष में है वो यस बोले और जो बिल के विपक्ष में है वो नो बोले। I think I have it. Honorable Home Minister please। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2019 को इंट्रोड्यूस करने की सदन की अनुमति का मैं शुक्रगुजार हूँ। ऑनरेबल स्पीकर, आई प्रोड्यूस द बिल ऑन द टेबल। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल 2019 को सेकेंड रीडिंग के लिए आगामी 20 अक्टूबर का समय निर्धारित की जाती है। नाउ द टाइम इज to start for title of second reading of the bill. Plastic Population Control Bill 2019. Honorable Water Minister please। अध्यक्ष महोदय, मैं निशा कुमारी जल संसाधन मंत्री। आज प्लास्टिक का युग है। हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली अधिकतर वस्तुएं प्लास्टिक से बनी होती है, लेकिन प्लास्टिक का उपयोग हमारे पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं है। इस प्लास्टिक के उपयोग से हमारा धरती बर्बाद होते जा रहा है। आज प्लास्टिक युग प्लास्टिक पोल्यूशन युग कहलाता है। प्लास्टिक पोल्यूशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स एंड पार्टिकल्स इन द अर्थ एनवायरनमेंट दैट एडवर्सली अफेक्ट वाइल्ड हैबिट एंड ह्यूमन। जब प्लास्टिक के बड़ी वस्तुएं जैसे प्लास्टिक क्लोथिंग, बैग, बर्तन, खेलकूद के सामान यूजलेस होकर हमारे प्राकृतिक में एकत्र होते हैं, जिससे हमारी मनुष्य, पशु पक्षी, जंतु जानवर को नुकसान पहुंचाती है। यह प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकना एकदम जरूरी है, जिसके लिए हमारी सरकार ने एक बिल लाई है, वह है प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल बिल 2019। इसके डिफरेंट क्लॉज है। पश्चिम बंगाल में कोई व्यक्ति प्लास्टिक या प्लास्टिक का बना वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता है। क्लॉज बी, पश्चिम बंगाल सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक से बना वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता है। क्लॉज सी, जो व्यक्ति प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग करके दिखा, उसे 2000 जुर्माना या 3 महीने की कैद या दोनों हो सकती है। धन्यवाद। अपोजिशन लीडर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में विपक्ष की नेत्री हूँ, इसलिए मेरा काम सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का विरोध करना है। लेकिन प्लास्टिक पॉल्यूशन एक ऐसी समस्या है कि इसके समर्थन किए बिना मैं नहीं रह सकती। सो आई राइज टू सपोर्ट द बिल। Honorable Speaker, sir, and all the members of this Legislative Assembly, I would like to tell you that I support the Plastic Pollution Control Bill 2019 as because plastic pollution can affect land, waterways and oceans. It is estimated that 1.1 to 8.8 million metric tons of plastic waste enters the ocean from coastal communities every year. Living organisms, particularly marine animals, can be harmed either by mechanical effects such as entanglement in plastic object problems related to the ingestion of plastic waste. Thank you. Honorable Home Minister please। Honorable Speaker, I rise to support the bill. As of 2018, about 380 million tons of plastic is produced worldwide each year. From 1950s up to 2018, an estimated 6.3 billion tons of plastic have been produced worldwide, of which an estimated 9% has been recycled and another 12% has been incinerated. This large amount of plastic waste enters the environment, with studies suggesting that the bodies of 90% of seabirds contain plastic debris. Some researchers suggest that by 2030, there could be more plastic than fish in the ocean by weight. Thank you. Mr. Rohit Sharma please। I wish to amend the bill in the clause है। प्लास्टिक पोल्यूशन सचमुच मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे राज्य में प्लास्टिक से वस्तुएं बिना किसी रोक टोक के ध्यान से बेची जाती है। हम सरकार के इस बिल का तहजीब से स्वागत करते हैं, लेकिन प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल बिल 2019 में थोड़ी सुधार की जरूरत है। मंत्री बोले प्लास्टिक से सभी वस्तुएं बना रहे जो उचित नहीं है। हम दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र प्लास्टिक से टॉय ब्रश बर्तन आदि का प्रयोग करते हैं, जिसका हम काम नहीं सुना। इसलिए हम सरकार से क्लॉज ए में सुधार की
की मांग करते हैं। धन्यवाद। समय के अभाव के कारण नाउ द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट till 11 AM tomorrow. हाँ